We have received 20,000 resignations from Muslim army Jawans in the wake of daily attacks. Our media has been blaming Muslims non-stop, while our central government is doing nothing to stop this hatred. Our army used to be a professional force, but this relentless saffronization has destroyed our morale. I feel in case of any war, Punjabi Sikhs and Muslims would stand against our army because of only one man, that is Narendra Modi. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने जो अभी सुना इसको सुनकर मैं भी चौंक गया कि कब हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि 20,000 भारतीय सेना के मुस्लिम जवानों ने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया है, सिख जवानों ने भी रिटायरमेंट मांगी है। मैं चौंक गया दोस्तों, चौंक गया मैं सच में ही। आज से 4-5 साल पहले कहा जाता था कि एआई आएगी, इंसान को रिप्लेस कर देगी, मानव सभ्यता के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन ये जो हाल फिलहाल में आर्मी चीफ के एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर पेश किए जा रहे हैं, और इस सफाई से कि ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा असली वीडियो है, कौन सा नकली वीडियो है। वाकई में एआई एक बड़ी चुनौती बन चुका है। हमारे इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने कभी नहीं कहा, और ना कभी भारतीय सेना में कोई जवान मुस्लिम होता है, हिंदू होता है, सिख होता है, ईसाई होता है, ना कोई कास्ट होती है। जवान सिर्फ जवान होता है, सोल्जर सिर्फ सोल्जर होता है। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं दोस्तों, ये झूठे दावे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से ऐसे कई प्रोपोगेंडा वीडियो जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को पता है कि वो जंग में हमसे नहीं जीत सकता, लेकिन वो झूठ में हमसे जीतना चाहता है। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, इसने चौंकाया, लेकिन इस वीडियो की सच्चाई क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने एआई से भी पूछा कि क्या ये वाकई में हमारे आर्मी चीफ ने कहा, तो एआई भी कहता है कि नहीं, किसी भी भारतीय आर्मी चीफ ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि 20,000 मुस्लिम जवानों ने रिटायरमेंट ली है। यह सूचना बेहद गलत है, इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। हालांकि फिर बड़ा सवाल था कि यह वीडियो है कब का। तो हाल ही में जनरल द्विवेदी सर, आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने एक सेमिनार में बातें कही थी, लेकिन वो एआई का यूज किस प्रकार से बैटलफील्ड में बढ़ता जा रहा है और तकनीक किस प्रकार से जंग का रुख बदल रही है, वहां पर सर ने बात कही थी। लेकिन देखिए कितनी होशियारी से इस सर की आवाज को ही एआई से जनरेट करके कुछ का कुछ बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया गया। Decade of transformation has already been given out. That also we are working on the 5 pillars of transformation. And all these 5 pillars, if I can say that, requires technology to kind of upgrade itself. I'm happy to know that Industry 4.0 has moved to Industry 5.0. What was 4.0? 4.0 when the AI, quantum and all those being talked about. But the 5.0 has realized that the rebalancing is required to bring in the human element. That is, technology is there not to replace human but to support them. What it means, it's a melange of the ecosystem and the technology. Both have to meet. Now, why it is important for us, especially for the Indian Army, because as for the Mask of War book is concerned by Carl Bilder, it says the USPs which are there for the Air Force is of course the technology, and for the Navy its platform. But in case of Army, it's always the word over is the human resource. That's why this Industry 5.0 is music to my ears. आर्मी चीफ का जनरल द्विवेदी सर का एक और वीडियो वायरल किया जा रहा है जो कि फेक है। Recently, our ranks have been debated whether non-Hindu castes should remain in the Indian Army. I brought this concern to the Defense Minister Rajnath Singh, and his response was unambiguous. By 2028, non-Hindu soldiers must be reduced by over 50%. We have begun selecting out those who refuse to embrace Hinduism. If anyone wishes to convert, they may receive a 5-year extension, but we will judge their sincerity before granting promotions.
Indian Army, we are told, is for Hindus, not for outsiders or descendants of so-called invaders. This policy is not about merit or loyalty. It's about purging diversity. As soldiers, we are being told to trade our oath for an ideology. History will remember what is being done in these halls. तो क्या सच में इंडियन आर्मी से नॉन हिंदू यानी कि मुस्लिम सिख सैनिकों की जो संख्या है उसको कम किया जा रहा है? ये जो एआई जनरेटेड वीडियो है इसका सच क्या है? आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा क्या था, जरा आप खुद सुन लीजिए, क्योंकि ये जो तकनीक आई है ये एक बड़ी चुनौती हम सबके लिए बनकर आई है। सुनिए जरा आर्मी चीफ ने क्या कहा था। टीआरएस कॉलेज आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी, क्योंकि मैं इस बिल्डिंग के चारों तरफ तो पता नहीं बचपन में कब से घूम रहा था, सन 73 से, परंतु कभी अंदर आया नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत था, क्योंकि यहाँ के जो भी स्टूडेंट्स निकले हैं उन्होंने जहाँ भी कुछ भी कार्य किया है बहुत सफलतापूर्वक किया है और रीवा को गौरवान्वित किया है। तो इसीलिए मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ के स्टूडेंट से बात करूँ। खासकर ऑप सिंदूर के बाद मैंने ये देखा कि जो युवा, जो हमारी जनसंख्या है, यही भारत का भविष्य है। और अगर मैं इनसे मिलकर बात करता हूं, अपने ऑप सिंदूर के जो लेसन है उनको शेयर करता हूं, तो ये भविष्य के लिए बहुत ही कार्यकारी साबित होगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ जो मैंने बताया, मैंने मिलिट्री के बारे में कोई बात नहीं की। मैंने उनको ये बताया कि जिंदगी हमें क्या क्या सीखना चाहिए। तो मैंने उनको 5 गुण दिए। जैसे पहला गुण था कॉन्फिडेंस या कामनेस जिसको बोलते हैं, दूसरा गुण था जिसको हम करेज बोलते हैं, तो कोलैबोरेशन बोलते हैं, चेंज बोलते हैं और क्लैरिटी बोलते हैं। इन 5 गुणों को मैंने हिंदी में समझाया और बताया कि अगर आप इसको अपने जीवन में अपनाओगे तो आप एक भारतवर्ष के जिम्मेवार और सफल नागरिक बनोगे। सर, आपके सहपाठी रहे हैं दिल्ली से पढ़े और कोर्स मेट रहे हैं, आपने कितना फ्रूटफुल रहा अगर देखा जाए तीनों लोग एक साथ? देखिए, किसी भी कार्य कुशलता के लिए जरूरी होता है कि पेपर या लिखाई से काम नहीं चलता है। सबसे जरूरी ये है कि आप क्या एक दूसरे को जानते हैं, क्या आप आपके ऊपर एक विश्वास करते हैं। तो जहां भारतीय सेना के तीनों चीफ, मतलब कहने का ये है कि जब तीनों एक साथ रहेंगे तो उसका बहुत फायदा होता है। और दिनेश त्रिपाठी मेरे सहपाठी हैं और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मेरे कोर्समेट हैं। तो उसमें क्या है, हम लोगों के आपस में जो एक विश्वसनीयता है बहुत प्रगाढ़ है। तो दोस्तों, एआई एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। जिस प्रकार से लिप्स मैच कर दिए जाते हैं, किसी की आवाज जनरेट कर दी जाती है, डिक टू डेक फेस बना दिया जा रहा है, फोटो को वीडियो बनाकर पेश कर दिया जा रहा है, कल्पना से परे है एआई की तकनीक। लेकिन ये बड़ी चुनौती भी बनकर सामने आ रही है और इसकी काट भारतीय सेना को भी और भारत को भी खोजनी होगी। लेकिन अपनी सेना पर आप विश्वास रखिए, दुश्मन इस प्रकार के प्रोपोगेंडा फैलाता रहेगा। इन प्रोपोगेंडास में नहीं आना है। हमारी आर्मी बेहद प्रोफेशनल है। यहां पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। सब भाई भाई हैं और सब भारतीय सेना के जवान हैं। तो दुश्मन के इन प्रोपोगेंडों में मत आइए। ये फेक एआई जनरेटेड वीडियो हैं। हमारे आर्मी चीफ को, हमारी आर्मी को बदनाम करने की साजिश सरहद के उस पार से रची जा रही है। आप कमेंट्स करके अपनी राय दे सकते हैं एआई को लेकर। थैंक यू। जय हिंद।